نحمده ونصلي على رسول كريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال الله تعالى في القرآن المجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ پچھلی کلاس میں میں اور آپ یعنی رو کے احکام سیکھے تھے اور رو مخفم کس طرح اور کس مقامات پر پڑھا جائے گا، اس کے کیا رولز ہیں، یہ میں اور آپ پچھلی کلاس میں الحمدللہ بہت اچھے سے یعنی سیکھے۔ اور مجھے امید ہے کہ جو بھی یعنی اسٹوڈنٹس کلاس اٹینڈ کیے لاسٹ ویک وہ دوبارہ سے ایک بار ریکارڈنگ سنے ہوں گے، یا کم از کم جو بھی پوائنٹس کی شکل میں گروپ میں بھیجا گیا تھا وہ ایک بار مطالعہ کر کے آج کی کلاس میں آئے ہوں گے، یا جو بھی اسٹوڈنٹس الحمدللہ لاسٹ ویک کی کلاس کسی نہ کسی مصروفیت کی وجہ سے مس کر کے ہوں گے تو وہ ریکارڈنگ کو اپنی یعنی سن کر آج کی کلاس میں آئے ہوں گے، کیونکہ یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر کلاس کی ایک دوسری کلاس سے کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، اور جب تک ہم پچھلا سبق کو اچھی طرح سے نہیں سمجھیں گے ہم آگے کی کلاس کو یعنی اگر لیں گے بھی تو یعنی اسٹوڈنٹس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور چونکہ لاسٹ کلاس میں جو لیا گیا تھا رو تفخیم کن مقامات پر پڑھا جائے گا اور اس کے کیا رولز ہیں، تو اس کا کنٹینیو پارٹ آج رہے گا کہ رو ترخیخ یعنی باریک کن مقامات پر اور کیا وجہ سے پڑھا جائے گا، اس کی سبب کیا ہے۔ تو یہ ہم الحمدللہ شارٹ طریقے سے، کیونکہ رو تفخیم میں پڑھنا یا موٹا پڑھنا اس کے کئی سارے پوائنٹس تھے، اس کے برعکس یعنی اس کے اپوزٹ میں رو ترخیخ یعنی باریک پڑھنے کے بس چند پوائنٹس ہیں، الحمدللہ 5 اور 6 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو انشاءاللہ آج خلاصہ کروں گی۔ اس کے بعد میں بتاتی چلوں کہ یعنی لاسٹ کلاس میں حاجرہ بیگم جو ہماری اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ پوچھی تھی مجھ سے کہ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع میں یعنی کیا ہے اور اس میں کیا ڈفرینس ہے، تو میں سرسری طور پر وہ بھی آپ کو ایکسپلین کروں گی، لیکن انشاءاللہ آج مجھے یعنی موقع نہیں ہونے کی وجہ سے، بزی رہنے کی وجہ سے میں لاسٹ ویک اس کا یعنی آپ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے نوٹس یا جو بھی پریپریشن تھا وہ نہیں کر پائی، تو اگلی کلاس انشاءاللہ ہماری حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع پہ رہے گی، اور اس کا تھوڑا یعنی میں لوں کلاس جب بھی تو میں بس یہ چاہتی ہوں اور میری یہ کوشش رہتی ہے الحمدللہ کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں اور بہت اچھی طرح سے قرآن کے ایگزامپلس کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو میں کچھ بھی ہری بری میں آپ کو لوگوں کو سکھانا نہیں چاہتی تاکہ یعنی آپ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کیا ہے، لیکن اس کا ڈیٹیل کلاس انشاءاللہ نیکسٹ ویک رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم اپنی اسکرین کو شیئر کر لیں تاکہ ہم کلاس کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔
जी, यहाँ पर जैसा कि आप और मैं स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रॉ को तरखीख या मुरख्खख या बारीक किन वजूहात, किन सबब या क्या सिचुएशंस में पढ़ा जाएगा, ये इंशाल्लाह मैं और आप आज आसानी से समझने की कुरान की मिसालों के जरिए से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्लास के खत्म होने के बाद अगर आपको कोई डाउट रहा इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो तरखीख, जैसा कि मैं आपको बताई कि रॉ का तरखीख पढ़ा जाना यानी रॉ को बारीक पढ़ा जाना। जैसा कि आप और मैं जानते हैं इस चीज को कि 3 ऐसे हुरूफ हैं हुरूफ तहज्जी में जिनको कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। उनमें से सबसे पहले तो अलिफ है, दूसरा रॉ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह 1 या 2 बार मैं आप लोगों के सामने खुलासा इस चीज का करके हूँ। ठीक है, तो रॉ तरखीख कब होगा इसको हम समझेंगे। रॉ यानी मुंदरज झेल 7 हालतों में रॉ 7 हालतों का यहाँ पर जिक्र है, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझी कि लास्ट हालत को आपके सामने लाऊं। तो मैं, क्योंकि ये इस वजह से कि जैसा मैं पिछली क्लास में आपको जब तफकीम, रौत का तफकीम होना समझा रही थी, वहां पे लास्ट पॉइंट आप लोग शायद नोट किए होंगे कि वो यानी जो रोम यानी रूल का एक नाम था रोम करके, तो रोम के रूल के हिसाब से वो बता रहे थे, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फिल वक्त मैं उस पर यानी जाकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। इंशाल्लाह आगे चलकर जब इशमाम और रोम का एक्सप्लेनेशन आपके सामने किया जाएगा मैं वो भी बताऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब फिल वक्त इसीलिए मैं आपके सामने 6 पॉइंट्स रखूंगी, 7th पॉइंट को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पर आप और मैं देखेंगे, रॉ के नीचे जेर हो, जैसे यानी जहां पर भी कुरान में आप देखेंगे किसी वर्ड में अगर रॉ आ रहा है और डायरेक्टली रॉ के नीचे अगर आप जेर या कसरा को देखेंगे तो वहां पर आपको क्या करना है, रॉ को बारीक पढ़ना है। ये इजीली अंडरस्टूड है और बहुत सिंपल है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। रिज़्क़न, रिज़्क़न, ठीक है। तजरी, 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 यहाँ पे चूंकि रॉ के नीचे कसरा या जेर आ रहा है तो हम रॉ को यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं करेंगे। ओके, और नेक्स्ट अगर इसके बाद अगर रूल नंबर 2 हम देखेंगे तो रॉ मुशद्दद के नीचे अगर जेर हो, रॉ मुशद्दद के नीचे अगर जेर हो, जैसे शर्री, शर्री। अब इसको मैं और आप मोटा करेंगे तो कैसे समझे करेंगे, शर्री, री, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, द डिफरेंस यानी बिटवीन क्या कहते हैं, रॉ को मोटा पढ़ने और बारीक पढ़ने का जो डिफरेंस है, इसको अगर हमें समझना है तो कैसे समझना है, मैं आपके सामने 2 तरीके से पढ़ूंगी और आप इसको समझेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मोटा करना हुआ, अब समझिए रॉ के नीचे जैसे यहाँ पे शर्री में जेर लगा हुआ है और रॉ के ऊपर मुशद्दद भी है, तो यहाँ पर हमें रॉ को तरकीक या बारीक पढ़ना है। लेकिन मैं अगर पढ़ने के दरमियान अगर इसको शर्री पढ़ने की जगह शर्री, शर्री कर दी तो मैं वहां पर रॉ को मुखफ्फम या मोटा पढ़ रही हूं, जो कि गलत हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो आपको और मुझे कुरान पढ़ते हुए ये ख्याल रखना है कि जब भी यानी जस्ट फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जब भी रॉ के नीचे कसरा आए तो हम वहां पे रॉ को बारीक अदा करेंगे। उसी तरह से रूल नंबर 2 में आप और मैं देखेंगे कि जब भी रॉ के ऊपर शद्दा हो या मुशद्दद लेटर हो, रॉ या शद्दा हो इसके ऊपर और फिर उसके नीचे जेर हो, तो उसको हम बारीक पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, दुर्रियुन, दुर्रियुन,
दुर्रियुन। यहाँ पे हम क्यों रॉ को 2 बार पढ़ेंगे? क्योंकि रॉ में जैसे मैं बताई कि जो भी लेटर पर शद्दा आएगा उसमें 2 वर्ड्स उसी लेटर के उसी लेटर के 2 लेटर छुपे होंगे। अब यहाँ पे रॉ मुशद्दद है तो रॉ साकिन प्लस रॉ जेर री 2 मिलकर आपको रॉ शद्दा होता है। इसीलिए जब हम इसको अदा करेंगे तो हम इसको 2 आवाजों का साउंड देकर अदा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं रॉ साकिन हो तो रॉ साकिन या कोई भी लेटर पर साकिन हो तो साकिन वाले लेटर को अपने आप से पढ़ना मुश्किल है, उसे उससे पहले वाले लेटर से मिलाकर पढ़े ही तो वो पढ़ा जाएगा। यानी रॉ साकिन हो, तो साकिन हो या कुछ भी हो, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, वो अपने से नहीं पढ़ा जाएगा। जैसा यहाँ पे मैं आपको बताई दुर्री दुर्री दुर्री, मैं 2 बार रॉ को अदा कर रही हूँ। ठीक है, पहला साकिन वाले रॉ को मैं दाल से मिला रही हूँ और फिर उसके बाद रॉ जेर री जो कसरा है इसको मिलाकर मैं पढ़ रही हूँ। अब यहाँ पर हम क्या सीख रहे थे कि रॉ को बारीक अदा करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वर्ड बिलहुर्री बिलहुर्री बिलहुर्री। यहाँ पे मैं अगर बिलहुर्री बिलहुर्री कर दी तो क्या होगा? रॉ मोटा हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। चलें नेक्स्ट हम थर्ड रूल समझते हैं इंशाल्लाह। रॉ साकिन इससे पहले जेर हो, रॉ साकिन है और इससे पहले जेर है, यानी इससे पहले वाला जो हर्फ या लेटर आएगा वो जेर होगा और रॉ पर साकिन होगा, तो इस सूरत में भी हम रॉ को क्या करें? इस सूरत में भी हम रॉ को क्या करेंगे? बारीक पढ़ेंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, शिर की कुम, शिर की कुम। ठीक है, रॉ पर साकिन है और उससे पहले शीन पर जेर है या कसरा है, जिसकी वजह से हम रॉ को क्या करेंगे? बारीक पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर अगर मैं इसको मोटा करके पढ़ दूं तो कैसे पढ़ूंगी? शिरकीकुम शिरकीकुम। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना गलत, हम इसको मोटा करके नहीं पढ़ेंगे बल्कि बारीक पढ़ेंगे। शिरकीकुम शिरकीकुम। नेक्स्ट वर्ड जो है शिर आतुन शिर आतुन। ठीक है, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट जो है इसकी वजाहत। अब वजाहत क्या है? वजाहत माने इसको एक्सप्लेन करना या इसका खुलासा करना। ठीक है, कि यहाँ पे ये वजाहत वर्ड क्यों आया है? क्योंकि जो थर्ड रूल है इसमें कहा गया कि रॉ साकिन इससे पहले जेर हो। ठीक है, रॉ साकिन हो और इससे पहले वाले हर्फ पर जेर हो। अब यहाँ पर जा रहा है कि किस सूरत हाल में रॉ को बारीक पढ़ा जाएगा, जब यानी इससे पहले वाला लेटर जेर वाला हो। लेकिन इसके 3 शुरूत हैं, मगर इस रॉ के बारीक होने की 3 शराइत हैं। गौर से सुने, थर्ड रूल से ही ये रिलेटेड है, कंफ्यूज ना हो जाएं। थर्ड रूल से रिलेटेड है और लेकिन इसका वो यानी टोटल थोड़ा आसानी होने के लिए, समझ में आने के लिए आपको और मुझे और थोड़ा इसका खुलासा कर रहे हैं। तो इसकी क्या 3 शुरूत हैं ये हम समझेंगे। सबसे पहले तो जेर असली हो। सबसे पहले क्या समझेंगे? कि जेर असली हो। जैसा कि आप शिर की कुम में देख सकते हैं वहां पे जेर असली है। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि जेर नखली या जेर आरिद कैसे हो जाएगा, ये तो कुरान में लिखा हुआ ही ऐसा होता है। तो लास्ट क्लास में अगर स्टूडेंट्स रिकलेक्ट करें जो मैं बताई थी आपको कि आरिद कसरा अगर लगाया जाए हमजतुल वसल पर तो वहां पे रॉ साकिना को मोटा पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद करनी होगी और इस पर तवज्जा करनी होगी। यही बात ये आपको बता रहे हैं कि अगर जेर असली हो तो वहां पर रॉ को बारीक पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर जेर आरजी हो तो वहां रॉ
ये बात हम बहुत गौर तलब बात है, हमें इसको समझना है। जैसे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, नीचे एग्जाम्पल्स के जरिए से मैं आपको ये समझाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे शर्त क्या थी, सबसे पहली शर्त जेर असली हो। एक कंडीशन सबसे पहले, ये थर्ड रूल का है, रॉ साकिन होगा, रॉ से पहले वाले लेटर पर जेर होगा। अब ये जेर क्या होगा, असली होगा। अब असली कैसे होगा, एग्जाम्पल में यहाँ पर देखें, असली की मिसाल, फिर आऊनू, फिर आऊनू, ये एक ही लफ्ज है, एक ही वर्ड है, जिसमें रॉ साकिन से पहले फा के नीचे जेर आ रहा है, तो ये असली हुआ, ठीक है। लेकिन आरजी, आप इसको आरजी जेर किसको कहेंगे, जैसा कि लास्ट क्लास में सेम एग्जाम्पल पर आप और मैं यानी पढ़े थे तफखीम में, आरजी की मिसाल एरोजी, एरो, एरो, क्योंकि यहाँ पे आरजी जेर क्यों हुआ, हमजतुल फसल पे, जैसा मैं आपको बताई उस्मानी टेक्स्ट में या इंडियन मुसफ में, इंडियन मुसफ या पाकिस्तानी मुसफ में आपको वो जेर लगाकर होंगे पढ़ने में आसानी होने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप उस्मानी मुसफ में देखेंगे तो शायद वहां पे जेर नहीं होगा, आपको वहां पे आरजी जेर, टेम्पररी जेर लगाकर आपको और मुझे वहां पर रॉ को पढ़ना है। तो जब हम खुद से हमजतुल वसल पर टेम्पररी जेर लगाएंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, रॉ को मोटा पढ़ेंगे। जबकि यहाँ पे रॉ बारीक होने की कंडीशन क्या है, कि वो असली जेर हो, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब सेकेंड रूल इसका क्या है, जेर इसी कलीमे में हो। सेकेंड कंडीशन क्या है, जेर इसी कलीमे में हो। जैसा कि आप दूसरी मिसाल यहाँ पे देखें, एक कलीमे की मिसाल, फअंज़िर, फअंज़िर, ठीक है, फअंज़िर, एक ही कलीमे में, एक ही वर्ड में रॉ साकिन से पहले जाल पर जेर आ रही है, तो एक ही वर्ड में आ रहा है, तो ये कंडीशन है। लेकिन अगर वही आप उसका यानी देखें, दूसरी मिसाल जो ये देकर आपको क्लियरली समझा रहे हैं, दूसरे कलीमे की मिसाल, रब्बिरजिऊन, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कलीमे हैं या दो वर्ड्स हैं, एक रब है, एक इरजिऊन, तो दो कलीमे अगर आ जाएं तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बा और रॉ साकिना के बीच में अलिफ आ रहा है, इसको हमजतुल वसल कहा जाएगा। चूंकि रॉ यानी इससे हमजतुल वसल से पहले चूंकि बा आ रहा है, तो हमजतुल वसल को पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि बा से डायरेक्टली रॉ साकिन को हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आप ये दो सूरतों में पढ़ सकते हैं। एक जो है आप इसको रब्बिरजिऊन इस तरह पढ़ सकते हैं, या रब्बिरजिऊन इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सूरत हाल में जब टू वर्ड्स में अगर हमजतुल वसल यानी आ रहा है और उसके बाद रॉय साकिन आ रहा है, तो टू वर्ड्स आने की वजह से यहाँ पे रॉ को बारीक नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि मोटा पढ़ा जाएगा। उसकी वजह क्या है, आरिद कसरा या टेम्पररी कसरा, या आप बस इतना समझ ले यहाँ पे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे दो वर्ड्स में आ रहा है, दो वर्ड्स आ रहे हैं और पहले वर्ड का लास्ट लेटर पर जेर है और दूसरे वर्ड के स्टार्ट पर यानी रॉ साकिन है, तो ये सूरत हाल में आप रॉ को बारीक नहीं पढ़ेंगे बल्कि मोटा पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या थी रॉ बारीक पढ़ने की, जैसा कि ये बताए, फअंज़िर, फअंज़िर, एक ही कलीमा या एक ही वर्ड में रॉ साकिन से पहले जेर होना जरूरी है। ओके, सो दिस इज द कंडीशन। अब थर्ड जो है, रॉ के बाद हुरूफे मुस्तालिया इसी कलीमे में ना हो, रॉ के बाद हरफे मुस्तालिया इसी कलीमे में ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, हरफे मुस्तालिया किसको कहेंगे, मोटे हुरूफ। जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि 7 ऐसे हुरूफे तहज्जी के हुरूफ हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं हर सूरत हाल में, जिनको हम क्या कहते हैं, खस्सा, दोगतुन, खिल, ठीक है। ये 7 मोटे हुरूफ हैं। तो यहाँ पर जब भी एक ही कलीमे में अगर रॉ साकिन से के बाद
रॉ साकिन के बाद एक ही कलीमे में अगर मोटा हर्फ आ जाए तो वहां पे रॉ बारीक नहीं होगा बल्कि रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। मोटा यानी हर्फ उसके रॉ साकिन के बाद आने की वजह से। ये मैं लास्ट क्लास में आपको ये क्लियर की थी ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे पढ़ेंगे इसको, मेरोसौद, मेरोसौद, रॉ को मोटा कर देंगे सौद आने की वजह से। तो थर्ड कंडीशन क्या हुई, दो कलीमे हो। देखिए फर्स्ट टू आप क्या समझे, एक ही कलीमा होगा, फिरऔन, फअंजिर, एक ही कलीमा रॉ बारीक होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, एक ही कलीमे में अगर रॉ साकिन के बाद मोटा हर्फ आ रहा है तो रॉ मोटा हो जाएगा। तो इसको दो कलीमे चाहिए, दो वर्ड्स चाहिए, ठीक है। जैसा कि दूसरी मिसाल यहाँ पर देकर है, फस्बिर सब्रन, फस्बिर सब्रन। यहाँ पे क्या हो गया, आप रॉ साकिन के पहले बा जेर आ रहा है या बा कसरा आ रहा है, तो आप इसको बारीक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में आपको सौद आ रहा है तो आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में स्वाद आ रहा है तो यहाँ पर हम रॉ को मोटा करेंगे करके, बल्कि आप उसको इग्नोर करेंगे, आप बस फस बिर 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 नहीं पढ़ेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर डाउट है फिर दोबारा पूछ लें, इंशाल्लाह मैं लास्ट में आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी क्लास रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। जी, यहाँ पर मस्कूरा इन शराइत में से अगर कोई शर्त भी टूट जाए तो रॉ मोटी या पुर पढ़ी जाएगी, जैसा कि मैं आपको बताई जो पिछली तीन शराइत थी। क्या शराइत थी, रॉ साकिन से पहले अगर सॉरी, रॉ साकिन से पहले वाले लेटर पर अगर जेर आए तो रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे, लेकिन तीन शुरूत के लिहाज से। अगर ये तीन शुरूत अगर नहीं हो रहे हैं वहां पे तो रॉ को बारीक नहीं मोटा पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो लास्ट यानी फोर्थ वन जो है, रॉ साकिन इससे पहले हर्फ साकिन और इससे पहले जेर हो, रॉ साकिन इससे पहले हर्फ साकिन और इससे पहले जेर हो, जैसे कि हिज्र, 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 बिही सिहर, सिहर। मैंने सिहरो, सिहरो ऐसे नहीं पढ़ा, ठीक है, बारीक पढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे रॉ साकिन आ रहा है, उससे पहले हा साकिन आ रहा है, उससे पहले सीन पर कसरा है। अज़िक्र, अज़िक्र, यहाँ पे रॉ साकिन आ रहा है, काफ साकिन आ रहा है, उससे पहले जाल पे जेर है या कसरा है, इस वजह से रॉ को हम तरखीक पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे। अब फिफ्थ रूल देखें, रॉ साकिन इससे पहले साकिन, सॉरी, रॉ साकिन इससे पहले या साकिन हो। ये मैं आपको पिछली क्लास में बताई थी कि जब भी रॉ साकिना आएगा उससे पहले या साकिना आ जाए तो आपको और मुझे कोई बात कंसिडर नहीं करनी है, बल्कि वहां पे रॉ को हमको लाइट ही पढ़ना है, ठीक है। याद रखें, या साकिन आने की वजह से रॉ लाइट हो जाएगा यानी तरकीक पढ़ा जाएगा हालत वक्फ में, ये भी आपको याद रखना है, हालत वक्फ में यानी स्टॉपिंग की सूरत में। अब वसलन होगा, वक्फन होगा, वसलन माने कंटिन्यूएशन पढ़ना, वक्फन माने स्टॉप करना, ये दोनों ऑपोजिट्स हैं। तो ओनली वक्फ की सूरत में या स्टॉपिंग की सूरत में राय साकिना से पहले अगर या साकिन आ रहा है तो वहां को बारीक पढ़ना है, ओके, ये नहीं भूलना है। वसलन में आप ये नहीं कर सकते, वसलन पे दूसरा रूल अप्लाई होगा, ओके। तो वो रूल के हिसाब से जाएगा वो वर्ड कैसे पढ़ेंगे करके। अब यहाँ पर आप देखें, खैर, यसीर, यसीर, इस तरह से रॉ को हम तरकीक ही रखेंगे, बारीक ही रखेंगे, क्योंकि रॉ साकिन से पहले या साकिन आ रहा है और उससे पहले वाले लेटर पर जेर आ रही है।
اب اس سے پہلے خیر میں دیکھیں آپ زبر آ رہا ہے تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ یہاں پر تو زبر آ رہا ہے تو ہم را کو کیوں موٹا نہیں پڑھ رہے ہیں. اس کو سمپل آپ یہ یاد رکھیں, آپ اس کے تھرڈ لیٹر کو نہیں دیکھیں گے, جب بھی را ساکن کے بعد آپ کو یا ساکن دکھائی دے وہاں پہ بات ختم, آپ کو را کو باریک ہی ادا کرنا ہے وقفن صورت میں یعنی سٹاپنگ کی صورت میں. اب لاسٹ جو ہے را ممالا یعنی وہ را جس پر امالہ کیا جائے. اب یہ بھی آپ کو ایک نیا رول ہے, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو انشاءاللہ یہ کلاس میں اس کو ایکسپلین کر دوں گی. را ممالا یعنی وہ را جس پر امالہ کیا جائے. پورے انٹائر قرآن میں یا تمام قرآن میں آپ کو صرف ایسا ایک ورڈ ملے گا جہاں پر ہم کو امالہ کا رول اپلائی ہوگا. امالہ کس کو کہیں گے, یہ شاید جتنا میرے علم میں ہے یہ سورہ یونس یا سورہ یوسف کی آیت میں آتا ہے. میں انشاءاللہ دیکھ کر آپ کو اس ایگزامپل کو میں ڈال دوں گی گروپ میں کہ یہ کون سے سورے کا ہے. تو پورے قرآن میں آپ کو صرف یہ ایک ایسا ورڈ ملے گا جو حفص عاصم کی روایت کے مطابق یہاں پہ امالہ کا رول اپلائی ہوگا. امالہ کس کو کہتے ہیں, یہاں پہ جیسا آپ ایگزامپل دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو را کے نیچے کسرہ یعنی کھڑی کسرہ دکھائی دے رہی ہے, جس کو اصلی کسرہ کہیں یا اصلی مدہ کہیں یا جو بھی آپ مد طبقی کہیں, آپ مصباح کی کلاس میں یہ پڑھ کر ہوں گے, ٹھیک ہے. تو دوسری جگہ پہ جب بھی آپ کو دیگر حروف میں یعنی یہ کھڑی زیر آتی ہے تو آپ اور میں اس کو زیر کا ساؤنڈ دے کر ہی پڑھتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم اس کو زیر کا ساؤنڈ نہیں دے کر پڑھیں گے بلکہ یہاں پر ہم اس کو تھوڑا یا کے ساؤنڈ کی طرف لے جا کر پڑھیں گے, جو کہ نہ آپ کو را بھی ہوگا. سمجھیے, اب میں پڑھ کر آپ کو پھر اس کے بعد بتاؤں گی اس کو. اس ورڈ یہاں پہ جو ایگزامپل دیا گیا ہے مجریہا, اس کو مجریہا نہیں پڑھا جائے گا. اوکے, لکھا ہوا قرآن کو آپ کو مجریہا ہی ملے گا, یعنی را کے نیچے آپ کو کھڑی زیر ہی ملے گی, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پڑھنا کیسے ہے, اس کو مجریہا نہیں پڑھیں گے آپ اور میں, بلکہ اس کو مجریہا مجریہا یا ساکن کو ملا کر پڑھیں گے آپ اور میں. یہ کیوں ہم لوگ اس طرح پڑھیں گے, کیونکہ حفص عاصم کی روایت کے مطابق یعنی حفص جو ہے امام حفص ان کے اسٹوڈنٹ عاصم ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ حفص عاصم کیا ہے جو یہ بار بار بولتی رہتی ہیں کلاس میں کر کے, اس پر یعنی ڈاؤٹ میں نہ جائیں. جیسا کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ دنیا میں 10 ایسے قراء ہیں, ٹھیک ہے, جو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قرآن کو یعنی قرآن کا جگاڑ کیا گیا اور اس کو ایک بک کی شکل دی گئی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے یعنی تمام صحابہ کو جمع کیا اور پھر ان سے یعنی الگ الگ صحابہ سے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا طریقہ تھا قرآن کو, اس سے پڑھایا گیا ان صحابہ سے, اور ایک صحابہ سے دوسرے صحابہ کو چیک کروایا گیا کہ ان کا پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے کیا, ٹھیک ہے. لیکن ہر ایک کی جیسے ٹون, اب سمجھے مصر کے لوگ وہ قرآن کو ایک اپنے طرز میں یا اپنے انداز میں پڑھیں گے, کوئی کہیں پہ قرآن کو چینج نہیں کرے گا, قرآن کے الفاظ کو چینج نہیں کرے گا, بلکہ پڑھنے کا طریقہ. اب فار این ایگزامپل آپ اور میں انڈیا کے ہی ہیں لیکن ہر ایک کا مختلف انداز ہوگا قرآن کو پڑھنے کا, اور آواز الگ سب کی الگ رہے گی, طرز سب کی الگ رہے گی. تو اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قرآن کو ایک بک کی کمپیلیشن یا ایک بک کی طرح شکل بنائی گئی, اس وقت یہ 10 قراء کو یعنی پوری دنیا میں یعنی آج تک یا تا قیامت تک یہ 10 قراء کی الگ الگ 10 قراتوں کو مانا جائے گا, ٹھیک ہے. اس میں امام حفص کو
बहुत ज्यादा यानी समझिए पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इनकी जो रूलिंग्स हैं या इनकी जो तजवीद के रूल्स हैं, इसको ज्यादातर प्रेफरेंस देकर उलमा पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यही है इमाम हफ्स। इंशाल्लाह अगर खुलासा कभी आगे चलकर करना पड़ा तो इनकी जिंदगी के बारे में मैं और आप जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक बयान के तौर पर। तो इमाम हफ्सुन आसिम की रिवायत के मुताबिक यहाँ पर इस वर्ड को इमाला किया जाएगा। इस रूल को याद रखें, ये रूल का नाम है इमाला। ओके, ये रूल का नाम है इमाला। और कुरान में सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा है जो जिस पर इमाला किया जाएगा। और यहाँ पर रॉ को आपको खड़ी जेर मिलेगी, लेकिन आप इसको खड़ी जेर के जैसे मजरीहा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको या मिलाते हुए मजरेहा मजरेहा पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैं बताई वो समझ में आ गया होगा। अभी क्लास का यानी वक्त बाकी है, तो मैं चले आपको एक और रूल है नब्र करके। हालांकि ये रूल बहुत बार हम लोग यानी अप्लाई करके कुरान को पढ़ते वक्त पढ़ते हैं, लेकिन बस समझे नहीं हैं कि ये कौन से रूल के मुताबिक हम यहाँ पर ऐसे पढ़ रहे हैं करके। तो मैं सोची कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को वक्त है आज तो उसका थोड़ा खुलासा कर दूं इंशाल्लाह। तो चैट में हाँ पारा नंबर 12, तो ये सूरह हूद में है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर अस्मा अज़हर। तो आप लोग ये मार्क करके रख लें जो मैं बताई आपको मजरेहा, ये सूरह हूद की आयत में आपको मिलेगा। इंशाल्लाह मैं देखकर आपको बताऊंगी इसकी यानी आयत नंबर वगैरह। तो फिल वक्त चलें, रॉ के रूल्स अल्हम्दुलिल्लाह हम तफखीम और तरकीक के समझ लिए। डाउट है तो क्लास के इख्तिताम पर 15 मिनट्स का वक्त मैं आप लोगों को दे दूंगी, आप इंशाल्लाह उसमें मुझे पूछ सकते हैं। जी, यहाँ पर देखें आप स्क्रीन पर, इंशाल्लाह मैं ये जो भी पिक है इसको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। अब सिर्फ आप इसको गौर से सुने और समझें। नब्र किसको कहते हैं? सहाबा रदी अल्लाह अन्हु के दौर में यानी नब्र जैसी कोई रूलिंग नहीं थी, क्योंकि वो लोग इसको पढ़ते तरह से पढ़ते थे, अदा करते थे, पर इन लोगों को यानी इतना खुलासा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा जो थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखे हुए थे। तो बहुत ज्यादा तजवीद के रूल्स को इनको जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऐसे ही यानी इसको पढ़ते हुए जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बाद के दौर में इसका खुलासा हुआ और ये नब्र का यानी स्टूडेंट्स को नब्र के बारे में सिखाया गया और समझाया गया। तो नब्र पहले क्या, नब्र किसको कहते हैं ये समझेंगे। किसी लफ्ज के किसी मखसूस, किसी लफ्ज के किसी वर्ड के किसी मखसूस यानी एक स्पेसिफिक हर्फ या हिस्से पर जोर देना के बाकी हुरूफ के मुकाबिल इस हर्फ की आवाज ऊंची हो जिस पर नब्र कर रहे हैं। यानी समझिए सिंपल टर्म में कि एक वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड में कोई ऐसा एक हर्फ होगा जिस पर आप और मैं उसको यानी जोर देकर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। ऊंची आवाज का मतलब हमारी आवाज को बहुत तेज कर देना, इस तरह का नहीं। यानी पढ़ते पढ़ते एकदम कोई वर्ड आए तो उसको तेजी से पढ़ना या जोर से पढ़ना, ये नहीं, बल्कि वो वर्ड को यानी थोड़ा दबाकर पढ़ना, या थोड़ा मैं आपको पढ़कर एग्जाम्पल जब समझाऊंगी तो आप समझेंगे इंशाल्लाह। तो वो क्या होगा, जब समझिए अब एक वर्ड है, वर्ड में 4 लेटर्स या 5 लेटर्स से एक वर्ड बनता है, ठीक है। तो अब उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड या एक जो है खास एक वर्ड, उसको सॉरी लेटर, उसको हम थोड़ा हाईलाइट करके थोड़ा उसको क्या बोलते हैं ऊंचा पढ़ेंगे, जिसकी वजह से दूसरे वर्ड्स का यानी आवाज उतनी हाईलाइट नहीं होगी। इसको नब्र कहते हैं। अब ये सिंपल एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और आप लोग ये करते भी हैं कुरान पढ़ते वक्त कि इसको नब्र कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3 सूरतों में आता है।
3 सूरतों में आता है, वक्फन व वसलन, वक्फन व वसलन, सेकेंड वक्फन और थर्ड वसलन। और वक्फन किसे कहते हैं? स्टॉप। वसलन किसे कहते हैं? कंटिन्यू। यानी जब कहीं पर आप स्टॉप कर रहे हैं, यानी आयत पढ़ रहे हैं, आप सांस टूटने की वजह से स्टॉप किए, या फिर आप वहां पे वक्फ का रूल आ रहा है, स्टॉप का रूल आ रहा है, या आयत खत्म हो गई है, तो वहां पे आप जाहिर सी बात स्टॉप करेंगे। वसलन किसको कहते हैं? आयत को आप कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं, वसलन माने कंटिन्यू पढ़ते रहना। तो दोनों सूरत हाल में जब आपको ये वर्ड्स आए तो वहां पर आप नब्र करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पहली वक्फन व वसलन में आप मद्दे लाजिम की तशदीद, क्या समझे आप? मद्दे लाजिम की तशदीद। आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मद्दे लाजिम को मिसबा की क्लास के जरिए से जानते हैं। ओके, क्या है मद्दे लाजिम? जब भी किसी वर्ड में या कलीमे में हुरूफे मद्दा के बाद फौरन शद्दा आए तो वहां पे मद्दे लाजिम होगा, और मैं और आप इसको 6 काउंट्स देकर या 6 हरका देकर या 3 अलिफ के हिसाब से अदा करेंगे खींचते हुए। ठीक, ये हुआ आपको मद्दे लाजिम। अब यहाँ पर पहली मिसाल आप देखें जो कि आपको सूरह फातिहा में आती है एंडिंग में, वद्दौलीन। यहाँ पे नब्र कहाँ हुआ? जैसा कि मैं बताई आपको, मद्दे लाजिम की तशदीद। अब मद्दे लाजिम की तशदीद कहाँ पर आ रही है? दौ के बाद अलिफे मद्दा, दौ में अलिफे मद्दा हो रहा है, उसके बाद आपको शद्दा मिलेगा, तो लाम पे आपको नब्र हो रहा है। अब नब्र कैसे हो रहा है? क्या है नब्र? पढ़ते वक्त आपको जैसे मालूम है कि लाम शद्दा में 2 लाम मिलेंगे आपको, एक लाम साकिन मिलेगा, दूसरा लाम मुतहर्रिक मिलेगा। तो साकिन लाम को आप क्या करेंगे? जैसा कि मैं बताई, कोई भी हर्फ पर अगर साकिन हो तो उसको पढ़ना मुश्किल है, उसको सामने वाले हर्फ की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दौलीन, दौलीन, यानी जब दौ को लाम साकिन से मिलाएंगे तो वहां पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे, उसके बाद फिर हम लाम जेरली को लेकर आएंगे। ये क्यों? बिकॉज लाम शद्दा में 2 लाम है, तो इसी को नब्र करना कहते हैं। और इसीलिए जरूरी होता है, अब तक जो हम सूरह फातिहा पढ़ते आए तो वहां पर आप कौरी को देखेंगे कि वो आपको 6 हरकत जितना खींचेंगे भी, लाम पर नब्र भी करेंगे, और फिर लीन में मद आरिद वक्फी करके स्टॉप करेंगे। इसीलिए तजवीद के रूल्स हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ना जब हम सुनते हैं, यानी सूरह फातिहा की तिलावत बहुत से लोग ना गलती करते हैं, इसमें सही नहीं होता। और चूंकि रूल्स नहीं जानने की वजह से क्या होता है, तिलावत एक तो सही नहीं होती, और रूल्स भी हम नहीं जानते, जिसकी वजह से हम गलतियां करते हैं, लहने जली में जाते हैं और गुनाह के हकदार हो जाते हैं। ओके, तो आपको और मुझे आगे चलकर इंशाल्लाह इसको सही करना है। कैसे अदा करेंगे? अब समझिए, यहाँ पे चलिए सूरह फातिहा का एग्जाम्पल लेंगे हम। वलद्दौलीन, ये जो मैं अल अल आप नोट किए होंगे, मैं वहां पे कंट्रोल करके लाम साकिन को फिर लाम जिरली पर ला रही हूँ, तो ये नब्र है, इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करके सही करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे लेटर है, अल्हाक़, कैसे? अल्हाक़, अल्हाक़, कैसे? अल्हाक़। ठीक है, यहाँ पे कौफ तक आपको
थोड़ा 1 और 2 सेकेंड्स के लिए रोकना है। शायद मेरी आवाज इतनी वजाहत के साथ आप लोगों को सुनाई नहीं दे। बस इतना याद रखें कि खौफ शद्दा में दो दो खौफ है। तो खौफ साकिन को आप हाईलाइट करेंगे, हा के साथ इसको मिलाएंगे, फिर सेकेंड खौफ को, खौफ सबर खौ को आप पढ़ेंगे। तो ये भी प्रैक्टिस में आपको लाना है, ठीक है। तो इस तरह का मद्दे लाजिम के बाद अगर शद्दा आए तो वहां पे नब्र होगा। अब सेकेंड जो मिसाल है वक्फन और वसलन में, या और वाउ जब मुशद्दद हो, किसी भी हर्फ में यानी किसी भी वर्ड में या पर और वाउ पर जब मुशद्दद हो, कुरान में कहीं पर भी आए, आपको याद रखना है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे इया का नहीं पढ़ेंगे, ये भी यानी आपको सूरह फातिहा की एग्जाम्पल है। इया का या पे मुशद्दद है, नब्र हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, इया का, ठीक है। अदुव्वुन, 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 वाव पे नब्र हो रहा है, वाव मुशद्दद होने की वजह से। वलीयुन, 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 इस तरह से पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस पे नोट है, क्या है नोट? जब भी इदगाम हो रहा है, यानी नूने साकिन या तनवीन के बाद वाउ और या आए, तो वहां पे इदगाम होगा, वहां पे नब्र नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नब्र कब होगा? जब एक ही वर्ड में या पर या वाउ पर अगर आपको शद्दा आए तब नब्र होगा। नब्र आपको अगर नूने साकिन या तनवीन के बाद या और वाउ आ रहा है, वहां पे नब्र नहीं होगा, वहां पे इदगामे नाखिस माल गुन्ना होगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। चले नेक्स्ट। अच्छा, वक्फन और वसलन कैसे हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं। अब देखिए, वलद्दौलीन, इसको आप कंटिन्यू में भी पढ़ें या स्टॉप भी करें, दोनों सूरतों में लाम पर शद्दा रहेगा ही, वहां पे नब्र होगा ही, नो चेंजेस। तो यही वक्फन और वसलन है। अब जैसे अल्लाह, यहाँ पे भी कंटिन्यू करें या स्टॉप करें, दोनों सूरतों में कॉफ पर शद्दा है, यानी हुर्फे मद्दा दोनों सूरतों में खौफ पर आपको यानी हुर्फे मद्दा के बाद खौफ पर शद्दा आ रही है, मद्दे लाजिम हो रहा है। तो एनी गिवन सिचुएशन आपको वक्फन हो चाहे वसलन हो, खौफ की शद्दा में कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो इसीलिए यहाँ पे नब्र होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताना था मुझे आपको। अच्छा, नेक्स्ट जो है वक्फन, मद मद या लीन, ये मद्दे लीन नहीं, यहाँ पे वक्फन में यानी स्टॉपिंग में नब्र कब होगा? मद या लीन के बाद हमजा पर वक्फ करें, मद या लीन के बाद हमजा पर वक्फ करें तो वहां पर नब्र होगा। कैसे होगा? अस्समा, शई, 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 थोड़ा हमजा साकिन, यानी जब हमें यहाँ पे समझिए कंटिन्यूएशन में असमा है, समझिए एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वक्फ करने की सूरत में आपको नब्र होगा। अब वक्फ कब होगा? एक तो हम सांस टूटने की वजह से स्टॉप करेंगे या आयत के एंड में स्टॉप करेंगे। तो दोनों सूरतों में अगर आपको स्टॉप करना है और वहां पे आपका वर्ड असमा, यानी असमा ही नहीं, एनी वर्ड, एनी वर्ड जिसके आखिर में हमजा आ रही है और हमजा की हरकत को आप स्टॉप करने की सूरत में, वक्फ करने की सूरत में आप साकिन दे रहे हैं, तो वहां पे हमजा साकिना की तहकीक के मुताबिक आप जानते हैं कि वहां पे लाइट से झटका देना है, इसको नब्र कहते हैं। समझ में आया? इसको नब्र कहते हैं। अस्समा।
अब ये दरमियान में आएगा किसी किसी वर्ड्स में, जैसे मुमिनून, वहां पे नब्र नहीं होगा, वहां पे नब्र नहीं होगा, वहां पे सिर्फ हमजा साकिना की तहकीक हो रही है, इसलिए वहां पे आप झटका देकर जहर करके अदा कर रहे हैं। सिर्फ मैं जहर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप सिफत की क्लास से गुजर चुके हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर सिफत का और थोड़ा मैं खुलासा करूंगी आप लोगों को, तो इसीलिए। लेकिन यहाँ पर ये रूल ही क्या है, कंडीशन क्या है, नब्र कब होगा, जब आप स्टॉप करेंगे, हमजा को साकिन करेंगे, और वहां पे स्टॉप करने की सूरत में हमजा को, मुतहर्रिक हमजा को स्टॉप करेंगे और साकिन करेंगे, तो वहां पे नब्र होगा, कंटिन्यूएशन में नहीं होगा। ठीक है। अब जैसा नेक्स्ट वर्ड है लीन है, ये या लीन हो रहा है, शई, शई, या लीन हो रहा है, उसके बाद हमजा आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे शई उन, शई उन इसको रख लें एग्जाम्पल, लेकिन मेरी सांस टूट गई, ठीक है, या फिर वहां पे स्टॉपिंग रूल आ रही है, तो मैं स्टॉप कर रही हूं, तो मैं क्या करूंगी, शई, उनको हटा दूंगी और उस पर साकिन दे दूंगी। चूंकि मैं वहां पे साकिन दे रही हूं, तो वहां पे मैं लाइट लाइट झटका देकर स्टॉप करूंगी, तो ये नब्र करना हुआ। ओके, होप, उम्मीद है कि आप लोग समझ हो गए होंगे। इसका एक और पार्ट लेकर मैं स्टॉप करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोगों से अगर कोई डाउट्स हैं तो पूछ लूं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका कंटिन्यूशन करूंगी इंशाल्लाह। तो इसी वक्फन में मुशद्दद हर्फ पर वक्फ करने की सूरत में, मुशद्दद यानी समझिए आप पढ़ रहे थे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर भी आपको सांस टूट गई दरमियान में, आयत को पढ़ते पढ़ते सांस टूट गई और आपको स्टॉप करना पड़ा, या आयत के एंड में आपको स्टॉप करना पड़ा। तो जब स्टॉपिंग पर आप देखें कि वहां पर शद्दा वाला लेटर आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, फतौल, यहाँ पे एक्चुअली कंटिन्यूएशन में क्या कैसे पढ़ेंगे इसको, फतौलुन, फतौलुन इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे स्टॉपिंग में क्या हो रहा है, हम इसको क्या करेंगे, लाम को थोड़ा स्ट्रेस करके पढ़ के स्टॉप, हम सिर्फ फतौल फतौल ऐसे नहीं स्टॉप करेंगे, यहाँ पे नब्र हो रहा है, तो इसको हम कैसे पढ़ कर स्टॉप करेंगे, फतौल, 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 इस तरह से लाम को थोड़ा, यही मैं बताइए आपको, आवाज को थोड़ी ऊंची करके स्टॉप करेंगे, इसी को नब्र कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड एग्जाम्पल इसमें क्या है, मुस्तकर, यहाँ पे वो शद्दा भूल गए हैं, ठीक है, प्रिंटिंग में ये एक्चुअली यानी वसलन में यानी कंटिन्यूएशन में कैसे पढ़ेंगे, मुस्तकर्रिन, मुस्तकर्रिन, लेकिन यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ, सांस टूट गई या स्टॉप होने की सूरत में, ठीक है, तो वहां पर मैं कैसे स्टॉप करूंगी इसको, मुस्तकर करके नहीं स्टॉप करूंगी, मुस्तकर, मुस्तक करूंगी। समझ में आया, थोड़ा स्ट्रेस करके स्टॉप करूंगी, आवाज को थोड़ी ऊंची करके स्टॉप करूंगी। लेकिन यहाँ पर भी आप नोट करें, दो चीजें हैं यहाँ पर नोट करने की, ठीक है, एक, नूने मुशद्दद और मीमे मुशद्दद पर वक्फ की सूरत में गुन्ना होगा, नब्र नहीं होगा, यानी हुर्फे तहज्जी के लेटर्स में नून और मीम के अलावा तमाम लेटर्स पर जब शद्दा होगा स्टॉपिंग की सूरत में, तो वहां पे नब्र होगा। लेकिन नून और मीम मुशद्दद की जगह अगर आपको स्टॉप करना है, तो वहां पे आपको गुन्ना करके स्टॉप करना है। मैं एग्जाम्पल भी आपको बता देती हूँ, वन्ना, ये हुआ आपको कंटिन्यूएशन में। अगर मैं जोन्ना पे स्टॉप करूंगी, तो मैं कैसे स्टॉप करूंगी, वन, वन, ये आपको नब्र नहीं हो रहा है, नूने मुशद्दद है, स्टॉप कर रहे हैं साकिन करके, तो उसको गुन्ना करके ही स्टॉप करेंगे। इसी तरह से मीम मुशद्दद को, तो वहां पे आपको गुन्ना हो रहा है। नूने मुशद्दद और मीम मुशद्दद के अलावा अगर लेटर्स आए और उस पर शद्दा हो और स्टॉप करना है, तो वहां पे नब्र होगा, ठीक है। अब इसका लास्ट जो और एक बात नोट करनी है, हुरूफे कलकला मुशद्दद पर वक्फ में नब्र नहीं होगा। अब जैसा कि तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, व तब, वहां पे आप नब्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहां पे कलकला अकबर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला कर रहे हैं, नब्र नहीं होगा वहां कलकला के लेटर्स पर, ठीक है। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पर गुन्ना होगा,
स्टॉपिंग की सूरत में, और खलखला के लेटर्स पर अगर शद्दा आए तो वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट खलखला होगा। इसके अलावा जितने भी हुर्फे तहज्जी के कितने हुए, आई थिंक 21 लेटर्स, तो यहाँ पर नब्र होगा स्टॉपिंग की सूरत में। तो मैं यहाँ तक इंशाल्लाह स्टॉप करूंगी। वसलन जो है मैं अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज जल्दी जल्दी में ना बहुत फास्ट हो जाऊं तो आप लोग समझेंगे नहीं, ठीक है। अब मुबीना सिस आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें, मैं स्टूडेंट से अगर कुछ सवालात हों तो उनको समझा